Welcome back, students. Welcome to another exciting episode on Chapter 6 exercise, where we are going to revise what we have studied so far in our videos on Chapter 6. I hope you had a lovely experience on your favorite portal, StudyPure. So let's begin the exercise without wasting time. So first of all, as we all know, जितनी भी exercises हम start करते हैं, we always start them with short questions because this is the format of the paper usually. और अगर हम master हो जाते हैं one word questions में ही, तो long answer question करना कोई बड़ी बात नहीं है. इससे पता चलता है कि आपके concepts बिल्कुल clear हो चुके हैं. So let's begin with the first question. What is the minimum temperature at which a substance catches fire? Called. So very simple question from the chapter. You should know what is that minimum temperature called at which any substance catches fire. Any guesses? So let me reveal the answer. The correct answer is ignition temperature. So how many of you got it right? You can mention that in the comment section. So you can also test yourself with this exercise and you can let us know how much it has helped you. Now let's take question number 2. In which zone does the minimum temperature at which a substance catches fire called? Do you all remember the different zones that we studied about when we were seeing the outline of a flame? और अगर नहीं याद, you can always turn the video on once again where I have given the conceptual understanding of the different zones of the flame. तो उसमें से याद करो कौन सा जोन था जहां पे सब्सटेंस जो है उसको फायर कैच इजीली कर लेता है एंड वी कॉल दैट द आउटर जोन. क्यों बोलते हैं ये भी आप जानते हैं और अगर नहीं भी जानते इस एक्सरसाइज के थ्रू हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिकॉल करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which phenomena can lead to the melting of polar ice caps which may cause the sea level to rise, causing floods? Understand that carefully because it is not something which is purely related to combustion, but this is a concern which usually arises जब भी हम environment के topics लेते हैं या इन चीजों का environment पे impact पड़ते हैं. So वो कौन सा phenomenon है जिसकी वजह से हमें खतरा है कि हमारे polar ice caps melt हो सकते हैं and you know that can lead to floods. So any guesses? The correct answer is global warming. You understand global warming? हमने पढ़ा था कि combustion के जो emissions होते हैं या जो भी temperature rise होता है उसकी वजह से global warming बढ़ रही है और global warming ही रीजन है जिसमें हमें पता है कि टेम्परेचर एक टाइम पे इतना राइज हो जाएगा कि जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे इस हद तक कि वो फ्लड्स के थ्रू सारा कुछ खत्म कर सकता है. सो इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे. नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम अ कॉमन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट. So it can be any, right? क्योंकि कोई term condition specifically mention नहीं हुई है तो आप किसी भी common agent का नाम ले सकते हैं जो आग बुझाने के काम आता है. इसके लिए तो नॉलेज की ना भी जरूरत हो तो भी आपको पता है सबसे कॉमन चीज जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है अगर हमें आग को बुझाना है, what is that? Any guesses? The correct answer is water. जो मेरे मन में सबसे पहले आएगा. लेकिन क्योंकि हमने अलग टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स पढ़े हैं तो दूसरा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और फोम भी हो सकता है जो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम्स. अगेन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड प्रैक्टिकल आंसर टू दिस. यू कैन डायरेक्टली गो टू योर किचन एंड नो द आंसर. सो व्हाट अबाउट द गैस? इट्स एलपीजी व्हिच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और हम सबको पता है हमारे किचन में सबसे ज्यादा यूज एलपीजी का ही होता है. एलपीजी के फीचर्स क्या हैं ये सब चीजें हमने चैप्टर में डिस्कस करी थी. सो विद दैट लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज द कलर ऑफ एन एलपीजी फ्लेम? ये तो हम जला के भी देख सकते हैं और नहीं भी देखते
तो हमारे को पता है कभी ना कभी किसी ना किसी ने गैस फ्लेम तो यूज किया ही होगा, और अगर नहीं किया एटलीस्ट आपने विजुअलाइज किया होगा, राइट। तो सबसे पहला विजुअल क्या आता है जब हमारा फ्लेम ऑन होता है? दैट इज ब्लू, दैट इज व्हाट इज ओनली विजिबल टू अस ऑन द टॉप, दैट मीन्स द आउटर साइड। ओके, आई होप इट्स मेकिंग सेंस। So let's move to the next question. So name the most common fire extinguisher. अभी हमने different types के agents पढ़े थे जो fire को extinguish करने के लिए help करते हैं। तो यहाँ पे question यही है सबसे common उनमें से कौन सा है? उस पे भी मैंने light throw की थी जब मैं आपसे उन common agents, उन fire extinguishing agents की बात कर रही थी, right? So without wasting a second, reveal the answer in the comment section before me. And the correct answer is water. जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और फोम की नॉलेज नहीं भी होगी वो भी बता देगा कि अगर हमें आग को बुझाना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वाटर ही आता है। यस, आई होप यू ऑल एग्री। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द स्टेट्स इन व्हिच अ फ्यूल मे एग्जिस्ट? तो ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है जो कि डिफिकल्ट नहीं है, बट आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि जब भी आप फ्यूल्स का यूज करते हो आप कौन कौन सी स्टेट्स में फ्यूल को यूज करते हो, राइट। अभी हमने देखा था किचन में हम जब एलपीजी का यूज कर रहे थे, आप सब जानते हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। देन इन योर व्हीकल्स यू आर यूजिंग फ्यूल्स अगेन, which is that form of fuel, which state it is existing, right? And again I will just give you a hint, right? फॉरेस्ट में से भी ऐसी कोई हमें चीज मिलती है या आपका जो आयन करने वाला भैया है वो कौन सी ऐसी फ्यूल का यूज करते हैं और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने आपको वो सारे हिंट्स दिए हैं जिससे आपको इसका आंसर पता चलता है। एंड यू नो दैट अ फ्यूल में एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एज कोल एंड वुड, liquid form as petrol, diesel, and in the gaseous form as LPG. So fuel is existing in all the three states of matter. Very simple. All right. And keep checking your scores also. Now let's move to the next question. Name any two combustible substances. Simplest of all. बहुत ही basic है. Combustible substance क्या होते हैं? जो बर्न हो जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी दो चीजें बतानी है जो इजीली फायर को कैच कर लेती हैं। एंड विदाउट अ डिले, चारकोल, वुड, पेपर, द लिस्ट इज एंडलेस। जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा यू कैन राइट इट, इट शुड बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट शुड बर्न। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंबशन? या नाउ दे वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन कंबशन। जैसे उन्होंने अभी शुरुआत में आपसे सिर्फ दो एग्जाम्पल्स पूछे, अब जब हम एग्जाम्पल बता रहे थे तो एक्चुअली में हमने कंबशन के बारे में बात की। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको लिखना है कि वो किस टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब भी कोई चेंज होता है या प्रोसेस होता है वो केमिकल भी हो सकता है, वो फिजिकल नेचर का भी हो सकता है। तो जब हम कंबशन की बात करते हैं, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेटिंग बर्निंग, इट शुड बी अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे इनपुट्स और हमारे आउटपुट्स टोटली डिफरेंट हैं। और यही प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रोसेस की, दैट अ न्यू प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड। पहले जो आप इनपुट्स यूज करते हो और जो आपके आउटपुट्स आते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं एज अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एंड इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आपने जो आउटपुट ले लिया वो दोबारा से इंग्रेडिएंट्स नहीं बना पाएगा, राइट। सो इसीलिए कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 एंड यू हैव टू नेम एन आइडियल फ्यूल। तो आपके हिसाब से आइडियल कौन होता है? जो हमारा रोल मॉडल है या जिसको हम हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं व्हेनेवर वी हैव टू चूज समथिंग, इट शुड बी परफेक्ट फ्रॉम ऑल एंड्स। सो यहाँ पे जब हम एक आइडियल फ्यूल पूछ रहे हैं आपसे, तो आपके हिसाब से CNG, compressed natural gas, fits into the category of an ideal fuel. और वो किस लिए? क्योंकि हमने CNG के सारे फीचर्स पढ़े थे जो CNG को एक आइडियल फ्यूल बनाते हैं। इन द सेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी चेक करनी होती है, वो इजी टू हैंडल है कि नहीं है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स अगर एक फ्यूल के अंदर बिल्कुल एप्ट बैठते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनी पर्सन, देन इट मेक्स इट एन आइडियल फ्यूल। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन।
What are the 3 essential requirements for combustion? Very important. And if you remember, हमने different activities भी करी थी ये prove करने के लिए कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो combustion के लिए हमें चाहिए होती हैं. So without me telling the answer first, let's hear it from you in the comment section about the 3 requirements. So number 1, what is the correct answer? It's the fuel, that is letting that process take place. Then it is air, which is nothing but oxygen. उसके बिना combustion नहीं हो सकता. And heat, which is reflecting the ignition temperature, because that is the minimum temperature which is required by any substance to catch fire. तो combustible substance होना चाहिए जो हमारा fuel है, क्योंकि उसके बिना आप आग लगा भी लोगे तो बर्न नहीं होगा. फिर इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कई बार आग जला भी देते हैं पर हम सोचते हैं ये अभी तक जल क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा. और कई बार वो भी हो जाएगा तो एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर किसी भी तरह से बंद हो जाए या रुक जाए, आपकी जो फायर है वो अपने आप बुझ जाएगी. सो ये 3 पैरामीटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंबशन टू टेक प्लेस. I hope you all knew the answer. Does magnesium produce heat and light during its combustion? मैग्नीशियम के बारे में हमने बहुत बार बात करी है और मैग्नीशियम का जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है वो भी हमें मालूम है, राइट? तो जब बात वो कर रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है कंबशन के टाइम पे, तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट दिमाग में रखो. यस, इट डज, क्योंकि मैग्नीशियम विल स्टार्ट बर्निंग. तो ऑब्वियस सी बात है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी ही होगी, क्योंकि वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है. आपको सिर्फ यही सोचना था कि क्या वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है या नहीं. मैग्नीशियम की जगह पेपर में आपसे किसी और भी सब्सटेंस के लिए पूछ सकते हैं. जस्ट थिंक इन द माइंड वेदर इट्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉट. इट विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इफ इट इज combustible, and if it is not combustible, it is not going to produce heat and light. Okay, next question. What acts as a fuel for our body? Very general question. We can relate it. So tell me the answer, and I'm very sure half of you are answering this question and having it also, because we all need that fuel to keep our body working. So what is the answer? Food, right? I hope you all agree. Food is the fuel to our body. भूख लग जाती है जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर लेते हो, और waste means you're utilizing that energy which is produced from the food into different works that you're doing, and you start feeling hungry when your body is saying कि खत्म हो गया, right? आपको refuel करना है. तो हम जब खाना खाते हैं तो हम उसे refuel करते हैं. Let's take the next question. Give 2 examples of non-combustible substances. Again, very simple. Give quickly in the comment section. What are the 2 non-combustible substances? क्या ध्यान में रखना है? वो burn नहीं करते. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बर्न नहीं करती? वाटर, सैंड. यस, वेरी सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन द सन? हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन द सन? सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट? क्योंकि अब आप सोचो सन रोज आता है और सन हमसे कितनी माइल्स अवे है, कितना डिस्टेंस है. स्टिल अर्थ के ऊपर ड्यूरिंग समर्स अनटॉलरेबल हीट हो जाती है. हम लोगों से वो इतनी दूर है बट इतनी तेज रेज, इतना ज्यादा टेम्परेचर अनटॉलरेबल हीट बना देता है हमारे लिए. सो वहां पे कोई इंजन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, यही क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे वो हीट एंड लाइट कहाँ से आ रही है? उसका रीजन है न्यूक्लियर रिएक्शंस. आपको सिर्फ ये टर्म याद करने की जरूरत है, बिकॉज ये इन हायर स्टैंडर्ड्स आपको हायर लेवल पे बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो एज ऑफ नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन एज पर योर स्टेज शुड बी न्यूक्लियर रिएक्शन. जस्ट अंडरस्टैंड दैट. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? वेरी सिंपल क्वेश्चन. Not even if I don't relate this question to this chapter, you should know what is deforestation. It is chopping of what? What are you trying to destroy here? The cutting down of trees on a large scale is termed as deforestation. We all know this. No need to write it or memorize. आपकी general knowledge से ही आपको पता है deforestation is cutting down of trees. Yes.
Now let's take question number 18. What is the full form of LPG? हमने बहुत बार इसको दोबारा पढ़ा है, अब तो बिना सोचे समझे ही आप फटाफट आंसर बता सकते हो. LPG is nothing but liquefied petroleum gas. Yes? Very good. Question number 19. Give any two examples of carbon fuels. Okay. फ्यूल्स वही है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए, फ्यूल्स की जो कॉम्पोजिशन है वो कार्बन से होनी चाहिए. तो आप सोचो कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो कार्बन के सोर्सेज हैं. कोल, यू ऑल एग्री, आपने पढ़ा था कोल कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है. तो और ये कार्बन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो उसके अंदर कहां से आता है, रिमेन्स over millions and millions of years ago below the surface, and because of that the carbon is coming from there, right? Because वो एक biodegradable source है. So this answers, it's a tricky question because carbon से आप सोचो हमने तो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है वो फॉर्म कैसे हुए थे, and then all answer is yours. Yes? Let's move to question number 20. हम वही बात कर रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था. What is combustion? Very simple. So let's all say that together. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. बहुत important है oxygen को mention करना, क्योंकि उसके बिना no combustion will take place. So this is how we define combustion. Now let's talk about question number 21. Define ignition temperature of a fuel. Again I repeat, हमने ignition temperature पढ़ा है क्या होता है. Now let's read it together and memorize it. So the lowest temperature at which a fuel catches fire is called its ignition temperature. You'll remember it now? Very good. Let's move to question number 22. How does a matchstick catch fire? अब हमारी कैटेगरी चेंज हो गई है and we have moved to long answer question. So how does a matchstick catch fire? हम तो सिर्फ ऐसे करते हैं और सोचते हैं कि ये तो जल गई, लेकिन क्या उसके पीछे कोई साइंस इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर आप उस मैचस्टिक को लेके कहीं पे भी रब करने की कोशिश करोगे, आप ये देखो क्या मैचस्टिक बर्न होती है? नहीं होती. तो आपको समझ आएगा हम क्यों स्पेसिफिकली उस पैच के ऊपर रब करते हैं. और आप कभी अपनी फिंगर से उस पैच पे खुद रब करके देखना, जस्ट मूव योर हैंड ओवर दैट पैच एंड यू विल फील द डिफरेंस कि क्या रीजन है. सो बाय रबिंग अ मैचस्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, मुझे यही पूछना था, दैट सरफेस इज रफ और स्मूथ. ये आप सिर्फ उसको अपने हैंड से प्रेस करके या उसके ऊपर रब करके आप देख सकते हो. इट अटेन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर. उससे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर बहुत जल्दी पहुंच जाता है उस मटेरियल का जो उसके ऊपर लगाया हुआ होता है, एंड दस इट कैचेस फायर. सो साइंस इज यूज्ड बिहाइंड दैट. आप सबको पता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है. इसीलिए जब उस पर रब करते हो, वो एक रफ सरफेस है, उसको इग्निशन, उसको जब आप रब करते हो एक रफ सरफेस के ऊपर, तो जो केमिकल उसके ऊपर लगा होता है आपकी स्टिक के ऊपर, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट वियर एंड टियर, एंड द मैचस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग. सो ऑल ऑफ अस कैन बी इंजीनियर्स. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. जिसको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, जिसे पता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो फायर कहीं पे भी जनरेट कर सकते हैं. पुराने जमाने में आपको याद होगा जब आपने अर्ली मैन की स्टोरीज पढ़ी थी, उन्होंने फायर का इन्वेंशन ही इस तरह से किया था, वो स्टोन्स को रब करना शुरू हो गए थे बिकॉज अगेन दैट वाज अ रफ surface, and because of that friction spark started coming out. So this answers question number 22, and I hope you have understood the logic now. Now let's move to question number 23. Why is sodium kept immersed in kerosene? So what do you say? Why is sodium immersed in kerosene? What is the reason behind that? We all know that सोडियम हैज अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. तो जब किसी का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, वो क्या होगा, अगर मान लो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो रूम टेम्परेचर पे भी वो बर्न होना शुरू हो जाएगा.
और इस सिचुएशन में इट्स सो डेडली टू कीप इट outside, and that is what happens here. It catches fire on coming in contact with normal air, so it is always immersed in kerosene, ताकि उसका जो कट ऑफ है नॉर्मल एयर के साथ वो रुक जाए, and it doesn't catch fire on the normal room temperature also. Okay, let's move to question number 24. What are combustible and non-combustible substances? अब भाई मैं तो इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं तो अब आराम से बैठूंगी और मैं देखती हूँ कि आप क्या क्या आंसर्स नीचे लिखते हो, क्योंकि combustible और non-combustible substance अब तक बहुत क्लियर हो जाने चाहिए. Okay, giving you seconds, quickly tell me the answer and I'll reveal the combustible and non-combustible substances out. Substances which undergo combustion are said to be combustible. Write examples. And substances which are not burning, which don't catch fire, are non-combustible substances. Take a list of examples, write it down, and it's the simplest in this chapter. Right? Let's move to question number 25. Again a simple question. What is flame? लॉन्ग आंसर में इसको डालने का सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना, आप आंसर को कितना लिख सकते हो. सो हियर व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, ट्राई टू राइट आउट द आंसर योरसेल्फ, व्हिच टेल्स यू हाउ गुड यू आर एट एक्सप्लेनिंग आल्सो. सो फ्लेम is a region where the burning or combustion of gaseous substances takes place. So since it's a long answer question, I would suggest after this you can also draw the diagram of flames and understand yourself in the writing. Also write the description about the various zones of a flame, explaining it individually, and that also from your examination point of view, check the marks out of which you have to write the answer, right? So for that you should have the full theory with you. So question number 26, define a fuel. So now by now this definition should be on your tips. So let's see how much you know. Those substances which provide energy on burning are called fuels. Very, very true. And then you have a list of examples for fuels which you can give. So nothing difficult. I hope it was very simple. Let's take the next question. Define dark zone of a flame. अब क्योंकि आपने different layers पढ़ी हैं अपने flames की, अब आपको पता है उसमें से dark zone कौन सा है, light zone कौन सा है. So based on that, how will you define the dark zone of a flame? The innermost zone of a flame around the wick is called its dark zone. You know why? The nearest part which is around the wick is called the dark zone. It is the least hottest zone comparatively to other zones because you know that क्योंकि dark है, ऑक्सीजन का रीच तो वहां तक हो ही नहीं पाएगा अगर हम तीनों लेयर्स को कंपेयर करें, और बर्निंग वहां पे स्टार्ट पूरी तरह होती ही नहीं है. एंड दैट इज व्हाई इट इज द डार्केस्ट एंड द लीस्ट हॉटेस्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. अब ये तो आप फटाफट बता सकते हो क्योंकि आपने आइडियल फ्यूल के बारे में भी पढ़ लिया और तब हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल बनता है. तो अगर मुझे एक अच्छा फ्यूल चाहिए, एक आइडियल फ्यूल चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करूंगी या देखूंगी कि उस फ्यूल में है कि नहीं. सो नंबर 1, इट शुड बी द कैलोरीफिक वैल्यू. यू अंडरस्टैंड कैलोरीफिक वैल्यू, मैं उसे जितना बर्न करती हूँ वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूल बाहर से खरीद कर लाते हो तो आप ये भी चेक करोगे कि मैं उसको बर्न करूंगी तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर भी रहा है, इतने पैसे खर्चने के बाद मेरा काम उस एनर्जी से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, राइट. सो कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is very easy to transport because of course the delivery matters. अगर किसी में calorific value बहुत ज्यादा है और आपके लिए वो बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, लेकिन उसको मंगाना एक tedious जॉब है और वो इतना easily available नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए वो गुड फ्यूल नहीं बनेगा क्योंकि आप उसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाओगे, राइट. इट इज चीप, अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल, तभी सबकी पॉकेट में फिट होगा और लोग उसको अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे कंफर्टेबली, राइट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक अ फ्यूल अ गुड फ्यूल. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29.
What are flammable substances? Give examples. Now when we were studying this chapter, we also studied about flammable and non-flammable और inflammable substances, और दोनों के बीच का difference क्या होता है? Flame, right? तो जब वो flammable होगा तो flame होगा, और जब वो inflammable होगा या non-flammable होगा तो flame नहीं होगा. तो ये समझाना तो बहुत easy है, define करना बहुत simple है. The substances which have very low ignition temperature, क्योंकि तभी कैच फायर कर पाएंगे, एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड फ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल. ये सब बहुत जल्दी फायर को कैच करते हैं, सो इसीलिए ये सारे फ्लेमेबल हैं. और अगर यही क्वेश्चन नॉन फ्लेमेबल पे होता, यू नो व्हाट टू राइट. यस, ओके. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज रैपिड कंबशन? अब रैपिड कंबशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये कंबशन की एक टाइप है. कंबशन किस पेस पे हो रही है, और नाम से ही पता चलता है इट इज रैपिड. सो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन इट? व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इंस्टेंटली एंड प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, द कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. एग्जाम्पल, द इंस्टेंट बर्निंग ऑफ एलपीजी इन अ गैस स्टोव. होता है ना, आपने लाइटर स्टिक किया, आपने सिर्फ एक इग्निशन दिया, उसको फटाफट फायर आ जाती है. So this best describes rapid combustion, and yes, it is producing heat and light at the same time. Question number 31. Define spontaneous combustion. अब जब rapid combustion का मतलब था बहुत instantly हो गया. Spontaneous भी में बहुत ज्यादा time gap नहीं है, but how will you say and differentiate a rapid combustion with spontaneous combustion? So how will I say that? A type of combustion in which the substance suddenly catches fire. So it's not instantly now, it's suddenly. Without the supply of heat or friction externally is called a spontaneous combustion. मतलब हमारी तरफ से कोई भी तरह का कोई external source नहीं था जो उसको friction provide कर रहा था ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो. और ऐसा कहाँ देखा जाता है? जहां पे स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है, इन द फॉरेस्ट फायर्स. बहुत बार तो ये ढूंढने में ही टाइम लग जाता है कि हुआ क्या, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग स्पॉन्टेनियस कंबशन, एंड दिस इज हाउ इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम रैपिड कंबशन. आई होप यू आर क्लियर विद इट नाउ. लेट्स टेक अनदर डेफिनेशन, explosion. All of us have heard about explosion, especially during one festival. And what is that? Diwali. बहुत explosion सुनते हैं, right? So क्या होता है explosion में? A type of combustion during which a huge amount of heat and light is evolved with a bloom along with the production of gas is known as explosion. फायरवर्क से बेटर एग्जाम्पल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे मैंने दिवाली बोला, क्यों बोला? क्योंकि चारों तरफ सिर्फ एक्सप्लोजन ही हो रहे होते हैं, और क्या दिखता है आपको? बहुत सारी लाइट, बहुत सारे एमिशंस एंड बहुत सारा धुआं, राइट? सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमिशंस. तभी आपको क्रैकर्स बर्न करने के लिए मना किया जाता है. सो साइंटिफिकली इट्स एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is global warming? अभी कुछ मैंने बताया था जो लास्ट क्वेश्चन में, जब मैं दिवाली में फायर क्रैकर्स की बात कर रही थी, उसका कुछ इम्पैक्ट और जो इफेक्ट्स होते हैं वो इससे भी रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से. क्योंकि जब हम बहुत सारा हीट कर रहे हैं, बहुत सारी कंबशन कर रहे हैं जगह जगह पे, आप सब जानते हैं उसका अपना एक डिसएडवांटेज होता है कि एमिशंस होंगे ही होंगे. एमिशंस कितने सेफ हैं, यही समझदारी होती है फ्यूल को चुनने के लिए. हम बर्न करे जा रहे हैं और अगर उसके एमिशंस इतने डेडली हैं जिसके बारे में हम नहीं सोचते, देन इट बिकम्स अ ट्रबल फॉर अस एंड आल्सो द एनवायरनमेंट. सो हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट? An increase in the average temperature of the Earth's atmosphere, especially a sustained increase that causes climatic change, is termed global warming. तो जब हम यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर के इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो ही कहां से हो रहा है? एमिशंस के थ्रू जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट डिक्रीजिंग द क्लाइमेटिक चेंज. जितने हमारे क्लाइमेटिक चेंज हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं. जो पहले पैटर्न फॉलो होता था वो नहीं हो पा रहा. कभी भी फ्लड्स आ जाती हैं, कभी भी रेन्स आ जाती हैं, और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप एवरीडे लाइफ में खुद फेस करते हैं. सो
Now you understand what is global warming. Let's move to 34. Explain how water gets boiled in paper cup without burning it. There was an activity which we did when we were studying during the session, right? So अगर आप दोबारा से उसके बारे में देखना चाहते हैं, you can again watch the video and get back to this question. So लॉजिक ये है, पेपर को अगर आप फायर करने की कोशिश करोगे विद इन सेकेंड्स इट स्टार्ट बर्निंग, राइट, रैपिडली हो जाता है. लेकिन अगर उसी पेपर में मैंने पानी भरा हुआ है, फिल्टर पे लगाया हुआ है, एंड आई ट्राई टू बर्न इट, पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है पर पेपर बर्न नहीं होता, पेपर कप. ओके, सो नाउ हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस? When we heat the paper cup containing water, the heat given to it is rapidly transferred to water from the paper cup. The temperature of water goes on increasing until it attains its boiling point and starts boiling. As during this process, the heat is continuously being transferred to water, the paper cup does not attain its ignition temperature. So यही सारा क्रक्स था आंसर का. तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, वो हीट ट्रांसफर टू डायरेक्टली वाटर में हो जा रहा है, जिसकी वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वहां पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा, बिकॉज वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है एंड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड एज अ रिजल्ट द पेपर कप डज नॉट बर्न. So I hope you have understood what is the logic behind that. Good. Now let's move to question number 35. Explain complete combustion. तो complete का मतलब ही क्या होता है? जो बिल्कुल पूरी हो, और combustion आप जानते हैं burning process. तो complete combustion कब होता है? जब भी no residue is left behind. सबसे पहली चीज ये है, this gives you a hint कि combustion हमारा complete है क्योंकि कुछ भी residue नहीं बचा. Ash और smoke is not given off during or after this time, क्योंकि ash और smoke जो होते हैं वही represent करते हैं हमारे residue को. Mostly gases such as hydrocarbons go through this form of combustion, and on combustion hydrocarbons produce carbon dioxide, water and heat. So this is apt when you're explaining a complete combustion process, right? वो बहुत tedious नहीं होता, untidy नहीं होता, clean burning होती है. Okay? So let's move to question number 36. Although wood has a very high calorific value, we still discourage its use as a fuel. Explain. यही बात मैं पहले समझा चुकी हूँ. क्वालिटी तो बहुत अच्छी है कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उस फायदे के साथ एक नुकसान भी है. और वो नुकसान क्या है? क्योंकि आप सब जानते हैं जब हम वुड को बर्न करते हैं तो एमिशंस किस तरह के होते हैं. आंसर देम. Wood pollutes air very much, and using wood as a fuel would also lead to deforestation on a large scale. तो दोनों नुकसान ही नुकसान है. So we still discourage wood as a fuel क्योंकि हमारे पास उससे better alternatives हैं जिनका calorific value में भी wood जितना बहुत ज्यादा नहीं होगा but nearby हो सकता है. But उसके साथ साथ हमारे को दूसरे disadvantages नहीं face करने पड़ते. That is why in this case, we discourage the use of fuel as a wood. Let's take question number 37. How the use of CNG in automobiles has reduced pollution. जब हम ideal fuel की बात कर रहे थे तो उसमें हमने CNG को represent किया था. तो ये भी एक reason है कि हम उसको हमेशा automobiles में encourage करते हैं कि हम CNG का use करें. तो आपसे वो indirectly क्या पूछ रहे हैं? आपको यहाँ पे CNG की benefits बताने हैं, एडवांटेजेस बताना है. इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि ये अगर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा. कार्बन मोनोक्साइड गैस जो अगेन अ वेरी हार्मफुल गैस है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग इन एसिड रेन. सो हमारे एमिशंस कितने सेफ हैं ये बहुत मायने रखता है. तो इस केस में सीएनजी से हमें कोई खतरा नहीं है. It leaves behind no residue after its combustion. So it is a complete combustion process. तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमारी एफिशिएंसी भी ठीक ठाक आ जाती है, पोल्यूशन भी नहीं होता और साइड इफेक्ट्स भी नहीं है. तो दैट मेक्स इट अ परफेक्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. Now let's talk about next question. Name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. Now very simple question, and this question can be asked in any form.
कई बार इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके साथ आपसे 2-3 क्वेश्चंस और ऐड करके पूछा जाएगा. ऑलराइट, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है वो हम हमेशा किलो जूल्स पर किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. डोंट फॉरगेट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 39 नाउ. एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. इसका मतलब यहाँ पे आपको किस चीज की बात करनी है? आपको वो सारे एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, वर्किंग के बारे में सोचना है जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और क्यों करते हैं, यही वो आपसे पूछना चाह रहे हैं. सो एज explanation, we know that carbon dioxide is heavier than oxygen and it forms a blanket around the fire जब भी आप इस situation में उसको स्प्रे करते हो. इससे क्या होता है? Because of which the supply of air is stopped. तो हमने क्या किया? आग चल रही है, हमें मालूम है ऑक्सीजन इज अ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन. तो हमने उस ऑक्सीजन के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर दे दी जो उससे हैवी है और वो ऑक्सीजन को एंटर अब नहीं करने देगा. तो इससे क्या हो जाएगा? बर्निंग जितनी भी थी वो अपने आप रुक जाएगी या इनहैंस नहीं होगी क्योंकि आपने सप्लाई ऑफ कंबशन, जो सपोर्टर ऑफ कंबशन था, उसको रोक दिया है. सो मोर ओवर इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस एंड इन दीज वेज इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर. वेरी सिंपल. जब आपको ये लॉजिक समझ आ गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है और इसीलिए आप उसको स्प्रे करते हो ताकि हम रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को एंटर ना होने दें, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 40. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? So now इसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होगी फ्लेम के डिफरेंट जोन्स के बारे में. आपको ये पता होना चाहिए हर जोन में किस तरह का टेम्परेचर होता है, किस टाइप की कंबशन होती है. सो देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर. और यहाँ उन्होंने आपको एक हिंट भी दिया है कि हमें गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमें किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होगा. So let's look at the explanation. A goldsmith uses the outermost zone of a flame which is non-luminous because that's the blue zone. And you all know that the blue zone is the hottest. The outermost zone is the hottest. तो हमारा जो gold और silver है वो easily melt हो जाएगा. And you know, since it's hottest, it's having the highest temperature out of the 3 zones. Right? So this type of questions will always come to test your knowledge because this is not something कि किसी ने आपसे directly flames का questions पूछा है, but it can come in give reasoning also and various other forms also where you have to justify the statement. So children, I hope we have covered every topic that we discussed during the chapter understanding, and these exercises have really helped you in your revision of the chapter and also for your examination point of view. So till then, wait for another exciting chapter test exercise from Study Pure. Bye-bye.